Hello and welcome. The world's eyes are currently on India. Prime Minister Modi, while speaking to the India Today group, said that the G20 will be the catalyst for a new global order. To talk about the preparations underway in the capital, we're joined by the government's top spokesperson, the Minister for Information and Broadcasting and Sports, Anurag Thakurji. Welcome to India Today. I want to start by talking to you about the big G20 Leaders Summit, which starts in a few days. Coming as it does on the back of the story coming from Beijing that Xi Jinping has announced that he will not be traveling to India. Now, we had this big gala jamburi, the preparations were on. In government, how disappointed are you that the Chinese president will not be coming for India's G20? Let me just say this is the big moment for India. G20 presidency is an honor, and the way Prime Minister himself was so involved in showcasing the India, the new India, the power of India, the art, culture, language, traditions, and now the digital India, the UPI payments to the digital currency. India from one field to another has been doing extremely well, from sports to cinema, and now economy, the world's fastest growing economy. I think if you look at the G20 so far, has been very, very successful. I'll give you a small example. One of the department which I head is Youth Affairs. So the Y20, which falls under the engagement group, how much engagement they might have done? We had more than 16,000 programs in the country. It never happened before anywhere across the world. So the way India has done it, more than 26 lakh youth has participated directly in these programs. More than 2,700 foreign delegates have participated in these programs. It's just one of the small groups, Y20 engagement group. But if you look at the overall G20 so far, we had more than 3,000 officials who have participated, and the response has been extraordinary. And if you look at the kind of memories people have taken, the thinking about India has changed. And I'm sure when the world leaders will arrive in India from a couple of days now, India will host them in a big, big way. ये बात तो सही है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि खबर आई कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे और पुतिन साहब नहीं आ रहे. हमारी यहाँ पूरी तैयारी थी दुनिया के स्वागत में. आप इसको किस भाव से देखते हैं कि शी जिनपिंग जो कि ब्रिक्स के लिए साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो दिल्ली नहीं आए? मैं इतना ही कहूँगा राहुल जी, भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनी है. ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद आप दुनिया भर में देखोगे, भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है. ब्रिक्स में भारत की जो भूमिका रही वो दुनिया ने देखी, ब्रिक्स की एक्सपेंशन के समय देखी, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ एक बार नहीं बार बार बनकर उभरे. और यहाँ ही नहीं, आप कोई ऐसा देख लीजिए, टर्की में अगर अर्थक्वेक आया तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग गए. ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन में हमने सब किया. और यहाँ पर भी भारत एक नहीं अनेक पहलुओं पर, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या हमारे अन्य ऐसे विषय हों, वुमेन एम्पावरमेंट हो. आज दुनिया का कौन सा देश है जिसके पास 9 करोड़ से जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के होंगे, सबसे ज़्यादा पायलट्स होंगे, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर बाकी सेनाओं में बहुत बड़ी भागीदारी होगी, कॉर्पोरेट जगत से लेकर खेतों तक महिलाओं की भूमिका हो. तो आप इसको बड़ा परिदृश्य में देखोगे तो भारत एक बहुत बड़ी भूमिका G20 की आयोजन में निभा रहा है, और इससे भारत की साख ही बढ़ने वाली है. और मेरा विश्वास मान के चलिए, बहुत कुछ अच्छा आगे लिखा है. G20 बना इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कि किस तरीके से दुनिया की जो आर्थिक दिक्कतें हैं उसमें दुनिया के देश मिलके आगे बढ़ पाए. इसके बीच में अब रशिया यूक्रेन की भी लड़ाई हुई. अब जितने भी G20 के इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की, फाइनेंस मिनिस्टर्स की देश के अलग अलग हिस्सों में बातचीत हुई, उसमें कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाया. वो इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन की लैंग्वेज क्या होगी इस पर कोई सहमति नहीं बनी. इस चैलेंज को, हालांकि इस वक्त G20 के शेरपाज मिल रहे हैं हरियाणा में, इस चैलेंज को आपकी सरकार अनुराग जी कैसे देखती है? मैं इतना ही कहूँगा, बहुत सारे पहलू हैं इसके, और बहुत सारे इसमें से चीज़ें निकल कर आ रही हैं. थोड़ा सा समय का इंतज़ार कीजिए. जहाँ तक सब कुछ इतना अच्छा हुआ है, आप सबके सहयोग से भारत ने अपनी ताकत को, जो मैंने कहा
हमारा आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब दिखाया। वहीं पे नए भारत की ताकत जो डिजिटल इकोनॉमी से लेके स्टार्टअप से लेके अन्य क्षेत्रों में हम शानदार कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। हमारी, अगर आप, मैं पिछले साल का उदाहरण भी दूं, इजिप्ट के राष्ट्रपति आए तो रिपब्लिक डे परेड पर उन्होंने कहा दुनिया तो ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती, वुमेन लेड एम्पावरमेंट तो भारत में देखने को मिलती है। तो जो आपको कर्तव्य पथ पे देखने को मिला उस समय, वो एक तस्वीर है नए भारत की। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब दुनिया भर के नेता भारत की भूमि पर कदम रखेंगे, बहुत एक अच्छा अनुभव, यादें यहाँ से लेकर जाएंगे। और ये G20 भी अब तक बहुत सफल रही और आगे भी सफल ही रहने वाली। एक तरफ है जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और फिर बीच में है इंडियन पॉलिटिक्स। आपने देखा किस तरीके से आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि मोदी जी इसको एक इवेंट बना रहे, कि पहले इंदिरा गांधी के वक्त पे भी नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ और ये तो एक एक करके हर देश में जाता है। 17वां देश है भारत जहां पे G20 लीडर समिट हो रहा है। आप पे आरोप यह है कि आप इसको इलेक्शन के प्रचार के एक टूल के तौर पे यूज कर। देखिए, फर्क इतना है, कांग्रेस पार्टी उसको एक परिवार तक सीमित रखती थी, नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ परिवारजनों तक इसको पहुंचाया है। ये अंतर है। उन्होंने इसके माध्यम से देश की ताकत को दुनिया को दिखाया है। और कहने के लिए तो हो सकता था कि इंदिरा जी भी योग करती थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाके योग दुनिया को तो नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। आज पूरी दुनिया योग का लाभ उठा रही है। बड़े नेता तो इनके समय हुए, एक परिवार से कितने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोविड-19 जैसे क्राइसिस में पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम के सोच के साथ जोड़कर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर G20 में लाकर ये दिखाया है कि भारत केवल भारतवासियों ने पूरी विश्व को एक परिवार के रूप में लेकर चलता है। ये एक परिवार तक सीमित थे। हमने देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स करके ये दिखाया है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी कैसे बढ़ावा देते हैं। यही अंतर है राहुल जी। ये राजनीति करेंगे एक परिवार को आगे रख के ही, हम देश प्रथम, हमारे लिए भारत प्रथम है। Minister, you mentioned that India wants to emerge as the voice of the global south. Now, the global south is an area where China has invested a lot of time, energy, money building linkages through the BRI initiative with countries in Africa and elsewhere. Now, one of Prime Minister Modi's big ideas is that the African Union should be given membership of the G20. Do you see that come through in this leaders summit? And do you see this idea of who leads the global south as becoming a contestation between India and China? Let me first say this. India time and again has proved, whether when we hosted in 2015-16 the African countries in New Delhi in Prime Minister Modi's first tenure. Now if you look at during the BRICS conference, the expansion of BRICS, how India has played a very important role. And even now, India is not there just for trade, commerce or some kind of interest. Look at one after another example. One, as I said, in Turkey earthquake or Syria, India was the first responder. When nobody else could come, India reached first. Look at the COVID crisis. When world was looking after their interest, India looked after the global interest. So one after another, terrorism to the black money, India has been raising these issues of the national interest. And you look at any incident from Afghanistan to Nepal to the Arab Spring, India played a very important role while saving lives of many people from India or from other countries. That clearly shows India is playing a larger role, whether you believe it or not. We are not in a competition with one country or the other country, but India image is growing, India's power is growing, and India's position is becoming more stronger and stronger with each passing day. Apart from being Minister for Information Technology, you also head the Sports Ministry, and very interestingly, Neeraj Chopra won another gold. Now, usually, जब कोई बड़ा खिलाड़ी बड़ा पदक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीतता है तो कुछ ना कुछ मतलब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लगता है कि ये बह गया, भटक गया। नीरज चोपड़ा के साथ ये नहीं हुआ, अभी भी एकदम फोकस्ड हैं। और हालांकि 90 मीटर्स उनके नहीं हुए, लेकिन गोल्ड वो लगातार जीत रहे हैं। आपको आश्चर्य एक तरीके से कितना फोकस्ड वो रहा है इसके बावजूद कि इतनी चकाचौंध उसके इर्द गिर्द है?
आश्चर्य नहीं, खुशी है। और ये खुशी बार बार नीरज चोपड़ा ने देश को दी है। और हम केवल एक खिलाड़ी तक नहीं, मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं पिछले 3-4 महीनों की भी केवल बात करूं, तो जो इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खेलों में की है, खेलों का बजट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया, टॉप्स जैसी योजनाएं लेकर आए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जहां बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग खिलाड़ियों की सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और एलीट खिलाड़ियों को उसके अलावा 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है। पूरा पूरा साल राहुल जी कई बार कैंप चलते हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट एथलीट को पूरा खर्चा भारत सरकार से आती है, 3 लाख जेब खर्च अलग से देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, जिनको 6,20,000 रुपये भारत सरकार उनके ऊपर एक एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च करती है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम इसी एक साल में बनाकर देश को दे देंगे, जिसमें 1000 पूर्व चैंपियन एथलीट को नौकरी मिल रही है। वो हजारों नए खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं। फिर ऐसे साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हो, खेलो इंडिया अकेडमीज हो, ये बहुत सारी हमने खोली हैं। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये पीछे जो ताकत लगती है वो दिखती, वो इसका परिणाम है। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जो स्पोर्ट्स लवर भी हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हैं, और साथ में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ी को जब समय होता है उसको और उसके परिवार से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 वर्ष का प्रज्ञनंदा चेस के महान खिलाड़ियों में से एक, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में जो फाइनल्स में पहुंचे, देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। विश्वनाथ आनंद के बाद केवल वही ये कर पाए। और मैग्नस कार्लसन को उन्होंने 16 साल की उम्र में हराया। 10-12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर और फिर इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बनना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे खिलाड़ी चेस में अच्छा कर रहे हैं। हमारी अंतिम फंगाल को देखिए, प्रिया को देखिए, ये अंडर 20 की वर्ल्ड चैंपियन बनी है रेसलिंग में, और अंतिम बंगाल ने तो दूसरी बार अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। अदिति को देखिए, अंडर 17 में आर्चरी का वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। इसी तरह से ही हमारे सात्विक और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन में बहुत अच्छा किया है। और मैं आपको एक के बाद दूसरी खेल की ओर ले जाऊंगा, तो हॉकी की जूनियर्स, मेंस और वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप हमने जीती। हॉकी की एशियन चैंपियनशिप हमने सीनियर की जीती। सैफ गेम्स हमने अब जीती। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में हमारी 4 बेटियों ने वर्ल्ड चैंपियन बनी। निखत जरीन हो, स्वीटी हो या हमारी लवलीना हो, इन सब ने जीता है। तो जैसे मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, आपकी आंख में एक एक्स्ट्रा चमक आ जाती है, मैं देख रहा हूँ। हमारे खिलाड़ी है जो गोल्ड जीत कर लाते हैं और ये पदक जीते हैं, ये उसकी चमक है। खुशी होती है कि हमारे युवा खिलाड़ी आज हमारा भविष्य और सुनहरा दिख रहा है। अभी एशियन गेम्स होने वाला है, जैसे अमित शाह जी या नड्डा जी बीजेपी को एक टारगेट देते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में क्या लेके आना है। क्या आपने डेलीगेशन को टारगेट दिया है कि कहाँ पहुँचना है दफा एशियन गेम्स में? हम जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जाओ, दम लगाकर खेलो, दिल से खेलो और चिंता मुक्त होकर खेलो। और जब आप खिलाड़ी को चिंता मुक्त करते हो तो उसकी कई वर्षों की मेहनत सफल होती है। टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20 और कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड आज तक के सबसे ज़्यादा। फिर थॉमस कप जीतना जो आज तक नहीं जीते थे। ये एक के बाद ऐसी अनेक उपलब्धियां पिछले 2 वर्षों की मैं आपको बता सकता हूं, जो खिलाड़ी पर बगैर दबाव डाले खिलाड़ी की बेस्ट परफॉर्मेंस आई। तो एशियन गेम्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा, जितने मेडल हम आज तक जीते हम उससे ज़्यादा जीतने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल में जो चाइना में हुआ, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, भारत ने 60 साल में केवल 18 मेडल जीते थे। हमने इस साल 26 मेडल जीते हैं, जिनमें से 10 से ज़्यादा गोल्ड है। अब जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपने बैडमिंटन की बात की, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, ये इंडिया के पारंपरिक स्पोर्ट्स रहे काफी वक्त से। शूटिंग में भी बाकू में जीत के आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रैक एंड फील्ड में, जैसे 4x400 मीटर्स रिले थी, उसमें हमारी टीम नंबर 5 कंक्लूड किया। अमेरिका के बाद हीट्स में नंबर 2 थी। और जैवलिन में टॉप 6 में हमारे 3 खिलाड़ी थे। ये कभी नहीं हुआ। ये ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया इमर्ज कर रहा है एक प्लेयर के तौर पे। राहुल जी, होता क्या है, आप देखिए 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता तो एक क्रेज खड़ा हुआ। ऐसे जब आपने रेसलिंग में, बॉक्सिंग में और बाकी खेलों में मेडल जीतने शुरू किए तो और खिलाड़ी उसमें आते हैं। तो दोनों एफर्ट चलती है, सरकार की भी, खिलाड़ी की भी। आप देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की,
जेवलिन की बात की ट्रैक एंड फील्ड में, पहले नंबर पे अगर नीरज चोपड़ा थे तो 5वें नंबर पे किशोर जैना थे, छठे पे मनु डीपी थे। इसी तरह से ट्रैक एंड फील्ड में आपने बिल्कुल ठीक कहा, हीट में जो हुआ वो सब देश ने देखा, नंबर 2 पे आए। लेकिन फाइनल्स में भी अगर आप देखोगे तो भारत ने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और उसमें मैं राजेश रमेश और मोहम्मद आनस और मोहम्मद जैकब वगैरह सबसे बात कर रहा था अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये यूएस के खिलाड़ी ने जाते जाते आपको जो एल्बो मारी है कैसे, तो देखिए पल होते हैं। अब हाउ डू यू टेक दिस, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस एट द इंटरनेशनल लेवल, बट व्हेन इट हैपेंस उसके कुछ पल गए और उतने ही पल में बहुत फर्क पड़ता है जी। तो सेकंड के भी कुछ हिस्से में आपकी हार या जीत लिखी है, लेकिन बेस्ट बात यह है कि एथलेटिक्स जहां पे 121 साल लग गए हमें गोल्ड का इंतजार करते, वो नीरज चोपड़ा ने जिताया। लेकिन उसके साथ साथ अब बहुत सारे और खिलाड़ी अन्य इवेंट्स में भी हमारा बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारत में मैं एक तरह से कहूंगा कि सुप्रीमली स्किल्ड हमारे लोग हैं और स्टनिंग परफॉर्मेंस देने का काम भी हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये एथलेटिक्स की दौड़ से मैं पॉलिटिक्स की दौड़ पे आना चाहता हूँ, क्योंकि सडनली आपकी सरकार ने अनाउंस किया कि आप ये स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं। ये आपने G20 के बीच में क्या शगुफा छोड़ा है? स्पेशल सेशन होते रहते हैं राहुल जी। नहीं होते नहीं रहते, ये तो बहुत ही कम। मैं हिस्ट्री स्टडी कर रहा था, ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है तभी स्पेशल सेशन होते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? मोदी जी हैं तो कुछ बड़ा ही होगा। अगर मात्र 2-2.5 साल में भारत को नई संसद दे दें आजादी के अमृत महोत्सव में, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हो, करोड़ों भारतीय जुड़े, हर घर तिरंगा अभियान में हर घर पे तिरंगा झंडा फहराया जाए। 370-35 के बाद तो जम्मू कश्मीर के भी हर घर में तिरंगा। और आपको याद होगा लाल चौक पे मैं जब 2011 में कलकत्ता से कश्मीर यात्रा करते गया तो मुझे गिरफ्तार किया गया था। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने जब वहां पे तिरंगा यात्रा लेके चले तब उनको गिरफ्तार किया गया एकता यात्रा के दौरान। कश्मीर में तिरंगा फहराना भी एक तरह से अपराध माना जाता था, लेकिन आज 370-35 से हटने के बाद देश के किसी भी कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर हो कोई भी हो, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और लाल चौक तो आज पूरे तिरंगे में लहराता है। ये क्यों हुआ है? मोदी है तो मुमकिन है। आपने कहा बड़ी चीजें करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव में अब जो कार्यक्रम चलने वाला है, मेरी माटी मेरा देश, ये देश के 30 करोड़ घरों से मिट्टी इकट्ठी करके देश के शहीदों को वंदन और मिट्टी को नमन करते हुए देश के स्कूलों में शिला फलकम लगा के उन शहीदों के नाम वहां पे लगा के अमृत वाटिका गांव में बनाकर और उस मिट्टी को ब्लॉक तक लाएंगे। ब्लॉक में कलश में डालेंगे, अमृत कलश में। ये अमृत कलश यात्रा गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से राज्य में, और 7500 ब्लॉकों से 7500 से ज्यादा कलश और अर्बन लोकल बॉडी में से वो दिल्ली में आएंगे। और अक्टूबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्तव्य पथ पे अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा के लिए देश के नौजवानों को संबोधित भी करेंगे। और ये देश के 30 करोड़ घरों से आने वाली मिट्टी ये प्रण दिलाएगी देश के इंडिया गेट पे बनने वाले आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई, राजपथ को बदल के कर्तव्य पथ का निर्माण किया, वॉर मेमोरियल वहां पे बनाया, पुलिस मेमोरियल यहां पे बनाया, वैसे ही उसके पास में आजादी का अमृत महोत्सव की एक मेमोरियल बनेगा और देश के 30 करोड़ घरों से हर गांव से आने वाली मिट्टी उसका हिस्सा बनेगी। ये आज तक कभी देश में नहीं हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आप जब राजनीति की बात कर रहे थे, विशेष सत्र की बात कर रहे थे, तो अगर बड़ा भवन संसद का बना जो आने वाले कई शताब्दियों के लिए होगा, तो उसमें बहुत सारे बड़े काम हुए हैं। अंग्रेजों की मानसिकता वाले 1500 से ज्यादा कानून भी हमने अभी खत्म किए। ऐसे बहुत सारे नए कानून बनाए जो आने वाले भारत और वर्तमान भारत के लिए है। तो मुझे लगता है इस सेशन में भी आप ऐसा कुछ देखोगे जो भविष्य के भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इलेक्शंस को एडवांस करने वाले हैं? क्यों राहुल जी, आप क्यों इतनी जल्दबाजी? अभी तो हमें इन अगले 6 महीने में बहुत कुछ देना है देश को। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। देखिए, जो कांग्रेस के समय के जो 40-50 सालों के प्रोजेक्ट रुके थे, हमने वो भी पूरे किए। जो मोदी जी ने अपने कालखंड में नींव पत्थर रखा, उन्होंने मोदी जी ने उनको भी पूरा किया। ऐसे कानून बनाए जो भविष्य के लिए भारत को
और मजबूत कर सके भारतीयों को और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सके, तो हम ये अवसर क्यों छोड़ें। हमारे पास विंटर सेशन भी है, हमारे पास इंटरिम सेशन जो आपका बजट सेशन होगा, हमारे पास वो भी अवसर है, हमारे पास देश को देने वाले बहुत सारे और बड़े प्रोजेक्ट हैं। क्यों? तो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। आप इस बात को खारिज कर रहे हैं कि इलेक्शंस एडवांस नहीं किए जाएंगे, कि इलेक्शंस को एडवांस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया ही क्यास लगाता है। मोदी जी गुजरात में भी मुख्यमंत्री रहे, यहां पे प्रधानमंत्री हुए, 2001 से लेकर 2024 आ जाएगा, 23 वर्षों में। क्या 23 घंटे भी उन्होंने पहले कभी चुनाव करवाया? ये आपको क्यास लगाने हैं, आप मीडिया में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या सरकार ने ऐसा कुछ कहा है? अभी मीडिया में सब बातें चलती हैं। हम तो एक एक पल, एक एक क्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश के लिए कौन से नए कानून, कौन से नए निर्णय, कौन से नए कदम, कौन से नए प्रोजेक्ट लागू करवाने हैं, हम उसी दिशा में काम करते हैं। और G20 की सफल आयोजन के बाद हमें अगला क्या करना है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा अहम बात आपने बोली, क्योंकि वो इंडिया वाले जो थे मुंबई में, वो सब पैनिक कर रहे थे कि हो सकता है कि इलेक्शंस एडवांस हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एकदम जब तक लास्ट बॉल तक आप बैटिंग करेंगे, आपको इलेक्शन जल्दी कराने का कोई इंटरेस्ट नहीं। देखिए, घमंडिया गठबंधन को कुछ 5 स्टार होटलों का खाना और खाने दीजिए साहब। इनकी मीटिंगों में कुछ और तो हो नहीं रहा। एक घमंडिया गठबंधन के नेता जो देश भर के वहां पर आते हैं, क्या करते हैं? राहुल जी को कोई मटन बनाना सिखाता है, कोई कहता है कि ये दूसरा नेता यहाँ पे कैसे आ गया। ये देखिए ना, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। ये पहले भी इन्होंने महागठबंधन बनाया, तब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी घमंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हुआ। But Anurag ji, the fact of the verdict in 2014 and 19 is that in the Hindi heartland states, the BJP won with the margins and the number of seats that it did because the opposition vote was split. And therefore, if the India Alliance is able to achieve what they're trying to do, to have one candidate of the India Alliance versus a BJP candidate on 400 seats, it may not change the ultimate result, but it does make the election more exciting and more closely fought. आपकी टेंशन बढ़ जाती है उससे? 1% टेंशन नहीं बढ़ती, टेंशन इनको है। तभी जिनका ना विचार मिलता है, ना सोच मिलती है, ना जिनके काम मिलते हैं, ना उनका प्रोग्राम मिलता है, वो सब एक साथ आए। What is common among them? Nothing. Neither their ideology, neither their programs. What brings them together? It is only the background, which is corruption, corruption, and corruption. Majority of them are the corrupt leaders, and they have come together on a platform just to save their skins. They see that they couldn't beat Narendra Modi in 2014, they couldn't beat Modi in 2019, and they are not going to beat Narendra Modi in 2024, because with Modi comes the hope, and the world see hope in India today. The world see hope in the Indian leadership today. The world see hope in the Indian youth today. And let me say this time and again, and I'll say this with all the commitment and all, that India has seen stability, and stability has led towards the growth path. And if you look at the trajectory of India's growth, it is outstanding in the last 9 years, from the 10th largest economy to the 5th largest economy of the world. The clean government, good governance and development model. This is what we have given. This is the BJP's good governance model. हम सुशासन की बात अटल जी के समय से करते आए हैं, और 6 वर्ष उस समय के देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, नेशनल हाईवेज हो, शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान हो, उस समय अटल जी ने जो नींव रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसमें बहुत आगे बढ़ाया है। कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी में ढकेलते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 3 लाख किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण भारत की 2014 तक, 7,20,000 किलोमीटर सड़कें हमने पिछले 9 सालों में, 74 एयरपोर्ट थे 2014 तक, हमने 75 नए बनाए हैं 9 साल में, 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 से ज्यादा नए बनाए हैं, 7 IIT और 7 IIM थे, हमने 16 और 14 कर दिए हैं। मैं एक के बाद आपको दूसरा उदाहरण दे सकता हूं। भारत स्टार्टअप्स में कहीं नहीं खड़ा था, भारत के युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का बनाया। क्यों भारत रुकेगा? क्यों इस घमंडिया गठबंधन की ओर देखेगा? जब एक और स्थिरता है, और स्थिरता से समृद्ध और संपन्न और सशक्त भारत बनाने का काम हुआ है,
ये स्थिर सरकार ही एक सशक्त भारत का निर्माण आगे भी करेगी। आपकी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। इस वक्त आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी सोच क्या है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, आप मुझे बताइए, आपका एक साल में कितने चुनाव कवर करते हैं? 5-6 हो जाते हैं। 5-6। आप कल्पना कीजिए, आपको सारे काम छोड़ के 6 चुनाव करने हो तो एक चुनाव में कम से कम 30 दिन चाहिए। तो अगर साल की भारत सरकार, राज्य की सरकारें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कितना समय बिताती हैं, नेता अपना समय जो नीति निर्माण में, प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन में, देश को आगे बढ़ाने में, वो एक तो वो है। दूसरा, अगर चुनाव एक समय पर होते हैं तो क्या इससे खर्चा नहीं होगा? क्या टैक्स पेयर का पैसा नहीं बचेगा? क्या आपको बार बार इन सब चीज़ों से हटके देश के विकास के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा पाएंगे? आखिरकार विपक्ष घबराता किस बात से है? क्यों एक साथ चुनाव कराने से घबराते हैं? आखिरकार अभी चर्चा ही तो शुरू की है, उनके मन में क्या डर है वो आके इस कमेटी में बताएं। कांग्रेस के जो लोकसभा के नेता हैं उनको इसका सदस्य बनाया। वो कह रहे हैं कि खरगे जी को बनाओ, आपने अधीर रंजन चौधरी को क्यों बना दिया? खरगे जी को देखिए, क्यों बनाया? लोकतंत्र में सीधी जनता से चुना हुआ कौन है? लोकसभा के लोअर हाउस के लोग हैं। अगर वहां पे कांग्रेस इतनी भी सीटें नहीं जीत पाती कि उनका विपक्ष का नेता बन पाए, हमने तो फिर भी तब भी कहा कि चलो सबसे बड़ा दल है, 40-46 सीटें इनकी आई हैं तो तभी भी दे ही दो। बड़ा मन करके हमने रखा है, हम चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो। हमने G20 में भी देखिए राहुल जी, बड़ा मन करके सभी राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में लेकर गए, 200 मीटिंग्स हुई। हमने ये नहीं कहा कि कौन भाजपा शासित कौन एनडीए शासित। इसी तरह से हमने वन नेशन वन इलेक्शन में भी सबके सुझाव आए, बाकी देना उनके माध्यम से नहीं, सुझाव। क्योंकि सवाल यह है कि अभी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में इलेक्शन है, क्या आपने ये क्लियर कर दिया कि इलेक्शन एडवांस नहीं करोगे? तो क्या आप इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के सोच रहे हो? क्या हमने कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो कुछ नहीं कहा। जब हमने कहा ही नहीं तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? या कुछ तो सोचेंगे ना कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये तो सोचने का और चर्चा करने का काम आपका है। जब सरकार ने कहा नहीं, मैं तो वही पोजीशन ले सकता हूं जो आधिकारिक पोजीशन है। सरकार की आधिकारिक पोजीशन ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, अमित शाह जी हैं, हरीश साल्वे जी से लेकर बाकी अन्य ऐसे लोग हैं। तो आप ये कह रहे इनका हैं बहुत एक्सपीरियंस अलग अलग क्षेत्र में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस जस के तसी होगा, जनरल इलेक्शन जस के तसी होगा। मैं अनुमान ये लगा सकता हूं कि उसके बाद के जो इलेक्शंस हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, उनको आप थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। राहुल जी, राज्य में चुनाव कब करवाने कौन तय करता है? राज्य की सरकार करती है। तो इसमें मेरा क्या रोल है? भारत सरकार नहीं, क्या पर मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी, तो आप एडवांस कर सकते हैं। हरियाणा की तो अगले, हरियाणा महाराष्ट्र के तो 2024 के अक्टूबर में चुनाव, तो उसको आप एडवांस कर दोगे ना 2024 के अप्रैल मई में मिक्स करके। हरियाणा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी ने कहा क्या? अभी तो नहीं कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? वो तो एडवांस कर भी नहीं सकते, आप उसको पुश थोड़ी कर सकते हो। आपको तो प्रेसिडेंट, मैं कह रहा हूं जहां पे भाजपा एनडीए शासित होती, क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। जब हमने कुछ कहा नहीं तो हमारे गले में घंटी क्यों डालते हो भाई? क्योंकि कुछ तो, अब आपने जब इतना बड़ा सेशन कर दिया तो वन नेशन वन इलेक्शन का नाम, तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि इस पे अभी चर्चा होगी, सहमति बनेगी। इस वक्त मतलब इमीडिएट कुछ नहीं है, ये आगे चल के होगा जो होगा। राहुल जी, अभी कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी में चर्चा होती है। नहीं देखिए, कमेटी एक रिपोर्ट देती है। आपने वो 370 ऐसे झटके में कर दिया ना, तो उसके बाद लोगों को लग रहा है अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ स्पीड से भी कर सकते हैं। थोड़ी कि आप जैसे अभी फीलिंग दे रहे हो, उससे लग रहा है कि 5 ईयर प्लान है, लंबा भी कमेटी बैठेगी, सबसे पूछोगे, पब्लिक से पूछोगे, पार्टियों से पूछोगे, लेकिन 370 तो आपने फट से कर दिया था। देखिए, जो जख्म और जो रगड़ा कांग्रेस ने 370 और 35A के कारण दिया है, उससे 40,000 लोगों की जान जम्मू कश्मीर में गई। देश कांग्रेस को उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। और मैं धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, उनका, कि उन्होंने इस सोच को रखा, और अमित शाह जी ने जिन्होंने 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त किया। पथराव बंद हुए, गोलीबारी बंद हुई, आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई, और कश्मीर सही मायने में स्वर्ग बनने की दिशा में अब बढ़ा है। ये हुआ है, उन्होंने जख्म दिए, हमने विकास दिया है। नहीं, तो अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे इस असेंबली, इस जो स्पेशल सेशन है उसमें कुछ नहीं, जो भी आपकी कंसल्टेशंस होंगी वो प्रॉपर प्रोसेस होंगी। आप यही कह रहे हैं ना कि ये जो स्पेशल सेशन है वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं है? राहुल जी,
ये जो स्पेशल सेशन है उसका एजेंडा भी आप सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार इस सेशन में क्या होने वाला है, ये बड़ा सेशन क्यों किया जा रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ बातों का तो इंतजार करना चाहिए। कई बार शुभ संदेश, क्योंकि दूसरी थ्योरी ये है कि जो ओबीसी कमीशन आपने बनाया जिससे कि पूरी जो ओबीसी कास्ट हैं उनको रिकन्फिगर किया जाएगा, उसके लिए आपने स्पेशल सेशन बुलाया। देखिए अब 4 दिन के सेशन के लिए आपने खुद ही कितना एजेंडा अपने आप फ्लोट कर रहे हैं। तो सरकार ने तो आपसे। नहीं कहा। ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बताएंगे आपको तो पता होगा ना, बता नहीं रहे हो, ऐसे हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हो आप। मेरा वो काम नहीं है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का नहीं, काम क्योंकि है। एक दूसरी थ्योरी ये है कि विमेंस रिजर्वेशन, आप कुछ ऑपोजिशन को डिवाइड करना चाहते हो, क्योंकि अगर विमेंस रिजर्वेशन बिल लेके आ गए तो एसपी और आरजेडी ये इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे। आप दिखाना चाहते हो कि उनमें आपने दरार डाल दी। देखिए हमें कोई दरार डालने की जरूरत नहीं। जब टिकट आवंटन का काम शुरू होगा, चुनाव घोषित होंगे, तो आप देख लेना ममता बनर्जी जी बाहर बोर्ड लगा देंगी पश्चिम बंगाल के, नो एंट्री टू कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट। अरे अभी पंचायती राज चुनाव में इतनी मार खाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने टीएमसी के गुंडों से, उनके नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, तो क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या केरल में क्या होने वाला है? राहुल जी आप मुझे बताओ, क्या वो स्वागत करेंगे इन सबका कि वहां पे आइए? क्या अखिलेश जी हो या वहां पे नीतीश जी या लालू जी हो, आपको क्या लगता है जिस रीजनल पार्टी के पास केवल अपने राज्य की कुछ सीटें होती हैं वो इनका स्वागत करके कहेंगे कि ये बाकी आप ले लीजिए? पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इकट्ठी थी कांग्रेस और सपा, क्या हाल हुआ? लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे नहीं थे क्या तीनों महागठबंधन में? बसपा, सपा, राहुल जी सारे इकट्ठे थे, बुआ भतीजा सब इकट्ठे थे, कुछ नहीं हुआ जी। देश की जनता बहुत समझदार है। जब ये 2014 में नहीं हरा पाए, जब इनके पास लूट का इतना पैसा था, करप्शन का इतना पैसा था, और उन्होंने कहा था मोदी नीच है, कभी बिच्छू कहा, कभी क्या कहा, सांप कहा, कभी मौत का सुदागर कहा, कभी चाय बेचने वाला कहा। देश की जनता ने बहुत समझदार है, देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यही फर्क है। और जनता आज भी जानती है कि स्टेबिलिटी क्या है, स्थिरता क्या है, और स्थिरता ही समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण और सशक्त भारत का निर्माण करेगी। और वो ये भी जानती है कि दुनिया होप भारत में देखती है और भारत में नरेंद्र मोदी जी पे देखती है। ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर की आप बात करते थे, ये जियोपॉलिटिकल इक्वेशन कोविड-19 के बाद ऐसी बनी है कि दुनिया आज भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का लाभ उठाना चाहती है, और भारत को अपनी इस ताकत को समझना भी चाहिए। जनता जानती है कि इस डेमोक्रेसी के माध्यम से हम सशक्त सरकार दे सकते हैं। युवा जानते हैं कि हम समृद्ध भारत का या विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं राहुल जी इसमें कोई सोचने वाली बात है। 2024 बहुत स्पष्ट लिखा है, आएंगे तो मोदी ही। क्योंकि अगर खेल के फील्ड में तिरंगा लहराते हैं तो चंद्रयान मिशन के माध्यम से चांद पर भी तिरंगा लहराया जाता है। शिव शक्ति पॉइंट पर जब विक्रम लैंड रोवर पहुंचता है तो पूरी दुनिया के चेहरे पर चमक आती, ब्रिक्स में वो चर्चा बनती है, लेकिन यहाँ पर कईयों के चेहरे मुरझा जाते हैं, उनको खुशी कम दर्द ज़्यादा हुआ। चलिए अनुराग जी, आपने हमें वक्त दिया, तमाम बातें बोली आपने, और सबसे अहम बात यह है कि जब G20 होगा तो दुनिया भारत का एक तरीके से जलवा भी देखेगा। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। बड़ा आयोजन है ये, न केवल सरकार के लिए बल्कि देश के लोगों के लिए। इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स एक साथ एक जगह पर हमारे कैपिटल में हैं। हमारी शुभकामनाएं। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.